Hello learners, welcome to my channel Economics Classroom. If you like this video, then please like and subscribe my channel. So guys, in the last video we studied about the factors affecting demand, and in today's video we are going to study about a very easy and a very important topic of microeconomics, that is the law of demand. So guys, this is a very important topic. Please don't leave it and surely do it for your exams, as the law of demand and the topics from demand are frequently asked in the exams. So demand chapter is really easy and it can fetch you a lot of marks. So please don't miss out on these chapters, as these are very easy as well as important for your examinations. So let us start our topic for today. So guys, let's understand the basic meaning of the law of demand. लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें एक्सेप्ट प्राइस को, what we come to know that the price and the quantity demanded of a good are inversely or negatively related to each other. अब नेगेटिव रिलेशन का क्या मीनिंग है कि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी और एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी. So when the price of a product increases, the quantity demanded of that product decreases, and when the price decreases, the quantity demanded increases. मतलब कि जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं कम खरीदना ज़्यादा प्राइस पे, और जब प्राइस कम होता है तो उस चीज़ की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है. कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं ज़्यादा खरीदना उस चीज़ को जब प्राइस को कम हो जाता है. एंड इन द लॉ ऑफ डिमांड हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं सिर्फ प्राइस को छोड़ के. एंड गाइस, if you don't know about the determinants of demand, you haven't seen my video, please go and watch the determinants of demand video, and the link is given down below in the description box. You can watch that video. So here is the inverse relationship defined between the price and quantity demanded. Let's understand this with the help of a demand curve. If you see here in the table, that is the demand schedule. Demand schedule is basically a table in which we enlist the prices and the quantities corresponding to each other. कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हुई. तो जब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को, कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हुई, सो दिस इज कॉल्ड अ डिमांड शेड्यूल. इफ यू सी इन द डिमांड शेड्यूल, जब प्राइस था ₹4 तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 10, 3 पे 20, 2 पे 30 और 1 पे कितनी हो गई 40. इंक्रीज हो रही है डिमांड हमारी. ये क्यों हो रहा है, डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है. पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 और फिर 1. जब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्या होता है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ₹1 नाउ. ₹1 पे कितनी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर? 40 यूनिट्स की. 2 पे 30 यूनिट्स की, 3 पे 20 और 4 पे 10. यहाँ से क्या पता लगता है हमें कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो रही है. सो दिस इज हाउ द प्राइस एंड डिमांड आर inversely related to each other. Now let's come to the demand curve. Here the demand curve is downward sloping, and a demand curve is always downward sloping. जो डिमांड कर्व है ये हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप होती है. सो बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड. बट स्टिल देयर आर अ फ्यू स्पेशल केसेस और एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है, एंड दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. So guys, if you see in the demand curve itself, when at ₹4 the quantity demanded is 10 और ₹1 पे कितनी है 40. जब प्राइस सबसे लोएस्ट है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो है हाईएस्ट, और जब प्राइस हाईएस्ट है तो क्वांटिटी डिमांडेड सबसे कम है, दैट इज 10 यूनिट्स. सो दिस इज हाउ द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड आर रिलेटेड टू ईच अदर.
Let's study the assumptions. जो हम assume करते हैं law of demand study करते हुए, there are few assumptions. We have to assume few things while studying the law of demand. वो assumptions क्या हैं? सबसे important जो assumption है कि प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, we will keep all of them constant. So the first is assumption is कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है, दे आर द सेम, एंड देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जो कंज्यूमर की इनकम है वो सेम है, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हैं जो वो भी चेंज नहीं हुए हैं. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है. एंड देयर इज नो चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना वो कम हुई है ना वो ज़्यादा हुई है, वो सेम है जितनी थी उसकी ऑलरेडी. एंड देयर इज नो चेंज इन द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. सो दीज आर आर मेन assumptions. बेसिकली वी हैव टू assume दैट जितने भी डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस को छोड़ के वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट. सो गाइज आई होप दिस इज क्लियर what we all studied today. So guys, if you like the video, please subscribe my channel Economics Classroom. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि डिमांड का कुछ केसेस में अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है.